लाइफ में सबको एक बार चांस जरूर लेना चाहिए। अगर आप भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या ही सोचेंगे। आपको लगता है कि आपने बहुत सीख लिया तो ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, ये भ्रम है बहुत बड़ा। ये डिग्री डिप्लोमा लेने से कुछ नहीं होता, उसके साथ में कितना आप जानते हैं चीज़ों को करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। How was Ishan like growing up? ईशान आपको लगता है कि बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तो ईशान वॉज कम्प्लीटली हाईली इंट्रोवर्ट गाय। What is your thoughts on dating and modern love? Papa ji, welcome to this channel. Welcome to my own home that I have been working on for the past 2 years. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के first of all? So thank you so much for having me today on your podcast. And बहुत अच्छा लग रहा है, and बहुत समय से this was long awaited event, so it's nice feeling, wow kind of feeling to be on your podcast, and it's an amazing, yeah. Awesome. तो ये वीडियो 500 के स्पेशल वीडियो है। बहुत सारे लोग पापा के साथ जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे वो देखे थे, तो a lot of you were interested to know his own perspective, so I thought let me bring him on the channel and see what he has to say about hard work, about success, about just things that he has learned in his own life. तो पापा जी, what was your upbringing like to start with the whole video sort of? तो जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, जब आप स्कूल में थे, तो आपकी कैसे परवरिश हुई, कैसे सब कुछ हुआ? Very interesting question. So I need to go back to the time which I really lived. Now when you go back and you think about the past time जो भी हुआ है, तो बहुत सारे emotions जो होते हैं ना, you need to go through the emotions. और ऐसा this is what which is said in the neurobiology that when you remember and recall your all the past memories, you actually relive those memories again and again and again, right? So my upbringing was a bit of struggle, yeah. So उस समय में so I start with my journey like when I started studying in the school. So nowadays people are studying in the private schools like DPS and some other this type of schools, but I studied in my school that is a government school where my parents used to, your grandmother and grandfather, they used to pay a fees of 1 rupees and 15 paisa that those days I remember per month. Yeah, per month, yes. So साल भर की पूरी पढ़ाई जो थी वो तकरीबन 20 रुपये में 25 रुपये में हो जाया करती थी। So that was the time. कंपटीशन तो था, सो आई स्टडीड इन द गवर्नमेंट स्कूल. It was a good time. Every generation and this time is having their own kind of fun, their own kind of achievements, their own kind of the crazy things. So this is what the time was there. So my parents was not so rich to take me to the good schools or even the convent school kind of study, but whatever the possible way, because of their hard efforts, I was able to complete my post graduation MSc, and after that it was my own journey where I started doing my own study by my own earnings. So I was teaching to the school kids. So for 10th class, 11th class and 12th class, and going to give them the home tuitions. So I remember मेरे पास में एक साइकिल हुआ करती थी जिसके साथ में मैं साइकिल से जाया करता था लोगों के घर पढ़ाने के लिए. Those days I used to get a fees around 150 to 200 rupees per month. तो इतनी फ़ीस होती थी, लेकिन उसमें बड़ी खुशी होती थी कि बहुत अच्छा लगता था कि चलो आप पढ़ाने जा रहे हो. एंड टीचर्स का तो अपना एक रिस्पेक्ट होता है सोसाइटी में. स्टिल इन इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कम्युनिटी टीचर्स आर हाईली रिस्पेक्टेड because I belongs to the teaching the family. My mother was a teacher, she was a principal in a private school. After that the teaching experience. तो ये सारा कुछ था, तो अच्छा लगता था. And teaching was what the one thing which was my passion and which was literally attracted me. So that is why MSc करने के बाद में 1 year I taught in the college as assistant professor. तो उसका अपना मज़ा था. I was very young those days. I was just 23 years old and I was teaching in the college. तो वहाँ इतना अच्छा होता था कि मेरे क्लास के जो बच्चे होते थे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले होते थे, जो MSc कर रहे होते थे, वो मेरे से ज़्यादा बड़े होते थे एज में.
So when I shared them, then this is what my date of birth, and there's many people said that, sir, आप तो हमसे भी छोटे हैं. So this was all, the time which I spent, enjoyed to a lot, participated in a lot of sports in like basketball. So I was a captain of basketball. Over a period of time, I became a coach also of basketball. So I was a university player in the basketball. So that sports always gives you that competition, and then how to overcome upon situation, and a lot of the team spirit that you can learn. Yeah. Awesome. तो आपके लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसी कौन सी कुछ हैबिट्स हैं, कौन से ट्रेड्स हैं जो लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द डूअर्स एंड फ्रॉम द ड्रीमर्स, अकॉर्डिंग टू यू? मतलब आपने जो भी देखा है, मतलब राइट, इन योर ओन, जब आप काम कर रहे थे, जब आप स्कूल में थे, तो आपने क्या देखा है ऐसा कुछ लोगों के अंदर जो होता है एक? So, very philosophical kind of question. Doers and dreamers. I would say there are always the two type of people in the life. One, the people those who are actually doers. Another one are the people those who are actually the philosophers. So maybe you can call it as a dreamer also. So philosophers are the people. So ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप you do things, अगर आप कुछ नहीं बन पाए तो कम से कम आप लोगों को सही तरीके से सही रास्ता दिखा तो सकते हैं, because you failed and you can tell other people that what not to do. So in the life it's important to understand that, it's important to understand that what you should do, at the same time what you should not do. So for example, how you should sit, it's also important how you should not sit, what you should speak, what you should not speak. So that's also sets the tone and the direction for you to go. Another important thing, the doers are the people, those who take chance, those who are having the ability to take risk. And you read the history, all the people, those who are known in the community, in the society, these are the people, those who creates history. And these are the people, those who really break the tradition, break the rules, and these are the people are the doers basically. So if you don't take chance, if you don't take risk, you won't be successful. So that is why this mindset is really very much important. And dreamer are the people, for example, someone said that, people are saying that once I have this, I will become this. Once if I have this, I will do this. राइट अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे फादर होते तो मैं बहुत बड़ा आदमी होता, अगर मैं अंबानी के यहाँ पैदा हुआ होता तो मैं बहुत बड़ा होता, अगर मैं टाटा के यहाँ पैदा हुआ होता तो मैं बहुत बड़ा होता. सो इट इज़ सेड दैट हाउ यू बॉर्न, दैट इज़ नॉट in your hand, but how you die, what you want to become, what you really want to chase in the life, that is absolutely in your hand. So I also feel that कि before you take your last breath, आखिरी सांस लेने से पहले कम से कम मन में ये मलाल नहीं होना चाहिए, मन में ये एक कुंठा नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता था तो मैं ये हो सकता था. सो आई फील दैट लाइफ में सबको एक बार चांस ज़रूर लेना चाहिए. तो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट लाइफ. तो जो भी यहाँ पर जो भी ऑडियंस जो सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन हो सकता है कि ये जो लोग चांस लेते हैं ना, ये लोग वो लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं. आप सोच के देखिए एक छोटी सी चीज़ कि सारे लोग एक ही दिशा में भाग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट द स्ट्रीम हाउ मेनी पीपल कैन डेयर टू रन और वॉक. तो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो ऐसे डिसीजन लाइफ में ले पाते हैं. और जो लोग ले पाते हैं, दे टेक द डिसीजन विद लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस, विद लॉट ऑफ डेयर इन टू देम, एंड दे आई थिंक दे बिलीव इन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डू हैव. एक दो तरीके की चीज़ें होती हैं. एक तो दिमाग में पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं बाकी लोग क्या कहेंगे. तो बिलीव यू मी दैट इन द लाइफ अराउंड 70 to 80% और मे बी मोर देन दैट पीपल आर ये इसलिए नहीं कर पाते कि उनको डर में मन में लगता है लोग क्या कहेंगे. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या ही सोचेंगे. तो कम से कम आप मन में ये एक फ्रस्ट्रेशन ना रह जाए कि अगर मैंने ये किया होता तो ये हो जाता. अदरवाइज बाकी सब लोग ड्रीमर ही होते हैं, वो सारे लोग बोलते ही रहते हैं बाद में कि यार मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था. I remember here the famous quote of Les Brown. He said that if all the audience and the people, those who are the viewers here, please listen to this very carefully.
I personally believe on this particular thing which I'll be sharing with you now, that suppose that you are on your deathbed, आप अपनी जो मृत्युशैया है उस पर लेटे हुए हैं और वहाँ पर आपके पास में देयर इज़ अ घोस्ट, एक आपके पास में एक भूत आता है और वो भूत क्या होता है, दैट इज़ द घोस्ट ऑफ योर एम्बिशंस, दैट इज़ द घोस्ट ऑफ योर ड्रीम, दैट इज़ द घोस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़, दैट इज़ द घोस्ट ऑफ योर हिडन इनर पोटेंशियल। वो आकर के आपको बोलता है कि आई एम डाइंग अलॉन्ग विद यू बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु कुड हैव गिवन अस लाइफ। सो यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है मरने से पहले, तो वो सारी चीज़ें आप कर लीजिए, वो रिस्क उठा लीजिए, वो जो एक कंफर्ट जोन के बाहर वाली ज़िंदगी होती है और ये जो एक बहुत बड़ी चेन होती है जो आपको बांध करके रखती है कि लोग क्या कहेंगे, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ initiative people are taking nowadays. And I would welcome all the people. Please come and break all the things here, the things which are hindering you and pushing you back from your dream and your goals and your achievements and your potential and possibilities. Break all those and move ahead in the life, and there is a victory which is standing to welcome you with the open arms. राइट, तो उनको अपॉर्चुनिटी दो, जा कर के उनसे गले लगो, एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप यू गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड ड्रीम एंड बिकम अ डूअर इन द लाइफ। डेफिनेटली मेक्स सेंस। गोइंग बैक टू द पॉइंट व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट द डेथ बेड, आपके क्या कुछ रिग्रेट्स रहे हैं, आपके क्या कुछ इनसिक्योरिटीज़ रहे हैं जब आप अपनी जर्नी में ग्रो कर रहे थे? दैट्स अ क्वेश्चन लॉट ऑफ पीपल हैव। बहुत सारे लोग ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट दे हैव सेल्फ डाउट। सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स आपके में ऐसा कुछ था क्या था, तो आपने उसे कैसे कॉन्कर किया? यस, सो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम टीचिंग, and after that, because of the death of my father, I need to come back to my hometown, and I was looking for some job opportunity. Fortunately got a job in the private school called St. Joseph Convent School, and I was teaching there for the class 11th and 12th, and someone told me that there is an interview which is going on for the medical representative. So I was not knowing what is this all about, the medical rep, but somehow because of my conscious calling, I appeared for the interview. And that was the interview where around 72 people were there, right, for that interview, and finally they selected 14 out of 72, and then out of 14 for the final interview round they selected 5, and I was the one who was chosen there. So the final interview I attended in Mumbai, I still remember the name of the people. So you never forget these things, right? So I still remember the building, the address and everything. So finally I got selected. So this was the journey, and after that I got promoted as a first line manager, second line manager, heading multinational companies for couple of states, and now I am into the corporate from last 22 years, and this has been the journey. एक learning ये है कि जो लाइफ में जो चीज़ें हैं जिसको आप सोचते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है, वो होता है. So this is how the things are, but keep learning. The important thing is life is all about learn and learn. No matter what you become, no matter whatever you are or wherever you are in your life, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया. तो अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं ना कि लाइफ ज़िंदगी का नाम है, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए. तो सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई आई एम एवरी ईयर appearing for some or other certification programs. So that is why I make sure that I learn every year some certification, some new things. World is full of knowledge. आप मर जाएंगे लेकिन ये दुनिया में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. तो आपका ये जीवन कम पड़ता है सीखने के लिए. आपको लगता है कि आपने बहुत सीख लिया, तो ये एक बहुत बड़ा एक डिल्यूजन है, इल्यूजन है, ये भ्रम है बहुत बड़ा. तो सीखते रहिए और बढ़ते रहिए. Awesome. अब आप थोड़ा सा मेरे बारे में बताइए. हाउ वाज ईशान लाइक ग्रोइंग अप? जब मैं मतलब पिछले 10 साल में, राइट, व्हाट हैज़ माय जर्नी बीन लाइक, एंड जब मेरा IIT में नहीं हुआ सिलेक्शन तो आपको कैसा फील हुआ,
एंड आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी उस टाइम पर. एंड देन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड हैव इज, जब मैंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया तो हाउ आर यू इन सपोर्ट ऑफ मी ड्रॉपिंग आउट, राइट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन एवरीवन हैज़ कि मतलब हाउ कैन माई पेरेंट्स सपोर्ट मी इन टू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस इन दिस होल जर्नी? तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो दोज हु आर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस, मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ईशान हैज़ आस्क्ड मी वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन. आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक सवाल का जवाब दीजिए. कितने सारे इंजीनियर्स हैं आपके पास, आप जानते हैं देश में, जो इंजीनियरिंग करने के बाद, चले भले वो IIT से कर रहे हो इंजीनियरिंग या किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करते हैं या कहीं से भी करते हैं, how much they are earning and why they are doing this engineering, graduation, post graduation, even for their doctorate also. तो उसके बाद में what is the purpose of doing all this? The purpose is only one, they want to live a good life, happy life, healthy life, rich life, and they would like to give this all comfort to their family members, right? तो मैं अपने जीवन में ईशान ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो PhD हैं. पता नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 PhD लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो बैठे हुए हैं. हाँ, वो बैठे हुए हैं. मैं उनको कब से देखता चला आ रहा हूँ कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं. खाली PhD लेना कुछ नहीं होता, खाली इंजीनियरिंग की नॉलेज लेना, इंजीनियरिंग कर लेना बड़े इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं होता. मैं बहुत सारे IITians को जानता हूँ, दे आर नो वेयर. उनको महीने के 20,000 रुपये, 25,000 रुपये कमाने में इतना स्ट्रगल करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कैसे कमाया जाए. तो ये डिग्री, डिप्लोमाज आर गुड, नो, बिकॉज मैं तो प्रो डिग्री वाला हूँ. मैं तो हर साल कुछ ना कुछ डिग्री या डिप्लोमा लेता हूँ. सो आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, आई डिड माई मेरे सर्टिफिकेट्स काफ़ी सारे हैं. तो मैं अगर बताऊँ तो मैंने आई डिड माई MSc, आफ्टर MSc आई डिड माई MBA इन सेल्स एंड मार्केटिंग, आफ्टर MBA आई डिड माई PG डिप्लोमा इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन human resource from XLRI, and after that I did lot of computer science diploma, and so many things. Every year I am doing some or other things. I am a part of many institutes, in international and national level of institutes, like I am into the advisory council of Harvard. I am guest faculty for some of the institutes like IIM and DY Patil and Symbiosis and many more. So ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन ये डिग्री डिप्लोमा लेने से कुछ नहीं होता. आप उसके साथ में कितना आप जानते हैं चीज़ों को करना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आई रिमेंबर आई लिव्ड इन मध्य प्रदेश, खंडवा. सो वहाँ पर एक कहावत है निमाड़ी में, तो आई एम एबल टू रिकॉल दैट. वो बोलते हैं, भणिया पर गुणिया नहीं तो कुछ नहीं. What does it mean, sir? Let me decode this. Let me, it says this. आपने अगर पढ़ाई करी है लेकिन अगर आपको आता कुछ नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं है. What do you know? तो यहाँ पर स्किल जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. देर आर मैनी पीपल, पुराने ज़माने में अगर आप देखें तो उनको कुछ नहीं आता था. दे आर नॉट एट ऑल इवन क्वालिफाइड, बट दे नो हाउ टू डू अ बिजनेस. आज आप किसी गुजराती को देखिए, आज आप किसी मारवाड़ी को देखिए, आज आप अगर आप राजस्थान जाएंगे, अगर आप गुजरात जाएंगे तो आपको वैसी बहुत सारी फैमिलीज मिल जाएंगी. दे डोंट बिलीव इन स्टडी, बट उनके बच्चे को, जो घर में जो बच्चा है बचपन से, उसको ये पता है कि बही खाता कैसे लिखना है, उसको ये पता है कि अकाउंट कैसे मेंटेन करना है. दिस इज द स्किल जो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं. और ये स्किल जो होती है, दिस इज नॉट द इनेट, दिस इज व्हाट यू कैन एक्वायर, right? So this is what which you can acquire. So world is full of knowledge. It's not important that you go to college and you go to attend the college like a very traditional way and you learn some skill over there. And world is full of knowledge. Like YouTube is the source of learning. Like YouTube there are many platforms are there. Coursera है और भी बहुत सारे Udemy है, वहाँ से आप सीख सकते हैं. And there you will find the world class lecturers and the professors are coming and making you learn. And maybe more than that, the people, those who are having the hands-on experiences and those who can make you learn about the new way of doing the things. So this is the important thing which is, I think, where people need to really understand and learn. जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वो लोग बस एक ही काम कर सकते हैं. जो बाकी जो लोग करने वाले होते हैं उनके ऊपर छीटाकशी करना, उनके ऊपर ताने देना, उनके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करना. और मैं तो उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये टाइम जो आप फालतू चीज़ों में वेस्ट करते हो ना, किसी के ऊपर लगाने में, कमी निकालना सब में बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी में अच्छी चीज़ ढूंढना. किस में कमी नहीं है आप बता दीजिए, है ना? तो वो कहावत है ना कि दुनिया में देखें तो किस में कमी नहीं है, आसमान के पास भी जमी नहीं है.
हाँ, तो आसमान जो सबसे ऊपर है उसके पास में भी ज़मीन नहीं है, तो आप तो आसमान नहीं है, आप तो कुछ भी नहीं है, और हम लोग कुछ भी नहीं है बेसिकली देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। आप ये सब चीज़ें बकवास करना बंद करो यार। अपनी ये जो एनर्जी आप गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, ये उससे कुछ हासिल नहीं होना है। इससे आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका जो इम्पोर्टेंट जो लाइफ का जो फेज़ है ना वो वेस्ट ही हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, हाथ जोड़ के आप ईशान के फादर अंकल समझ लीजिए, भाई समझ लीजिए, जो समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन मेरी सारे जितने भी लोग सुन रहे हैं ना उनसे सबसे एक ही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि देखो यार, आपके पीछे आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। आप नहीं समझ सकते कि जब एक लड़का सिगरेट पीता है, जब एक लड़का शराब पीता है ना गलत लोगों के साथ में, तो वो क्या बर्बाद कर रहा होता है। वो उसके सालों की जो उनके पेरेंट्स की लीगेसी होती है ना, उसको बर्बाद कर रहा होता है, ख़राब कर रहा होता है। जब वो टाइम वेस्ट कर रहा होता है तो वो इतने सालों की मेहनत जो होती है उसको ख़राब कर रहा होता है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, गॉड इज़ गिवन यू एवरीथिंग। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। आप ही हैं जो अपने पेरेंट्स के सपनों को सच कर सकते हैं। आप ही हैं जो अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का, अपने समाज का नाम ऊंचा कर सकते हैं। वो दिन जितनी जल्दी आप अपने जीवन में ला सकें कि जिस दिन आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाएं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे को लोग फ़ोन करते हैं कि अरे ईशान, आप ईशान के फादर हो, तो मैं बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। और एंड यू नो व्हेनेवर आई एम इन माय ऑफिस, जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ बाहर मीटिंग वगैरह में, तो पीपल आर सेइंग कि अरे यार वो मैंने जो वीडियो देखा था वो दैट वाज वेरी गुड, वो ईशान, आप ही ईशान के फादर हो क्या? तो दैट वाज द काइंड ऑफ मोमेंट। तो ज़िंदगी में जितनी जल्दी आपके वो मोमेंट आए, वो जितना जल्दी इंपॉर्टेंट होता है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप कितनी जल्दी अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि कब तक आप पेरेंट्स के नाम से जाने जाएंगे कि ये गुप्ता जी का बेटा है, ये शर्मा जी का बेटा है। लोग बोलते हैं ना कमेंट में शर्मा जी का लड़का तो ये जो है माहेश्वरी जी का बेटा है, ये खान साहब का बेटा है, ये असलम भाई का बेटा है। तो ये सब बकवास बंद करो। जितनी जल्दी आप जब तक करेंगे नहीं ना, तब तक वो आप अपने पेरेंट्स को आप नहीं बता पाएंगे कि आप बिकॉज ऑफ यू नो आप के पेरेंट्स को वो प्राइड कब देंगे, आप उनको वो कब सेंस ऑफ यू नो अचीवमेंट आप कब देंगे, वो खुशी कब देंगे। और मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, घर में जा कर के अपने एक बार कुछ मत कीजिए। सुबह सो के उठते हैं ना आप लोग, अपने पेरेंट्स की, अपनी माँ की और अपने पिता की आंखों में झांक करके देखिए। ये करके देखना दोस्तों, आपको ज़िंदगी की असलियत क्या होती है वो पता लग जाएगी। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं तो जा करके उनकी आंखों में झांक करके देखिए। और अपने आप से जब आप उनकी आंखों में देखें, उसके बाद शीशे में देखिए और अपने आप से ये वादा कीजिए कि मेरे पास वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो मैं फालतू चीज़ों में ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब से सब कुछ बंद करके अपना जो है काम, अपनी मेहनत उन सब चीज़ों को सीखने में लगाऊंगा जिसकी मुझे आवश्यकता है, जिसकी मुझे ज़रूरत है। सो पुट योर एफर्ट्स इनटू द फोकस्ड इनटू द वन पर्टिकुलर एरिया। तो फोकस में तो इतनी ताकत होती है कि जैसे आप जो लेंस से अगर आप लाइट लगाएंगे तो वो सारी एनर्जी कंडेंस करके जाती है, तो जो भी चीज़ होती है उसको लगा देती है, आग लगा देती है। तो वो आग आपके सीने में कब लगेगी, है ना? तो वो आग आपके सीने में लगाइए जब आप उनकी आंखों में देखें तो। और अपने आप से ये वादा कीजिए, मेक अ प्रॉमिस विद योर सेल्फ कि मेरे को वो काम करना है, और करना है तो आज ही से करना शुरू कीजिए। एंड बिलीव यू मी, जिस दिन से आप ये करने की कोशिश करेंगे, लाइफ ट्रांसफॉर्म होने में समय नहीं लगेगा। एंड दिस इज़ वॉट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ईशान, दैट दिस इज़ वॉट यू नो आई लर्न फ्रॉम यू एंड मैनी मोर पीपल, कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ ऑल अबाउट। एंड यू मीन्स यू एंड लाइक यू योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, दे आर डूइंग सुपर्ब जॉब एंड मैनी मोर पीपल। तो कंसिस्टेंसी में वो ताकत होती है कि दुनिया में आपको जो भी कुछ हासिल करना है वो आप हासिल कर सकते हैं। सही बात है। जब मैंने 2020 में अपना चैनल स्टार्ट किया था तो आपको क्या लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे क्या वीडियो डालता रहता हूँ पूरे दिन बैठ करके, इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी है वो तो कर नहीं रहा हूँ, लेक्चर हैं अटेंड कर नहीं रहा हूँ, घर में आ गया हूँ, बैठ गया हूँ एंड पूरे दिन वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आपको कैसा लगा एंड हाउ शुड पेरेंट्स रिएक्ट टू देयर किड्स ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक दैट इज़ नॉट मेन स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू यू? यू आर वेरी राइट. Now tell me your favorite, if I'll ask you the question, tell me the name of your favorite batsman. आप बोलेंगे सचिन तेंदुलकर, आप बोलेंगे विराट कोहली, पुराने लोग बोलेंगे कपिल देव, है ना? आप इनकी बात करेंगे, या आप दूसरे बाहर कंट्री में जाएंगे तो आप इमरान खान की बात करेंगे, आप जॉन्टी रोड्स की बात करेंगे, आप बाकी लोगों की बात करेंगे ना, तो आप उनको क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्पोर्ट एबिलिटी, राइट, नॉट देयर क्वालिफिकेशन.
है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप 5 ऐसे लोगों के नाम बताइए कि जिनको आप जानते हैं, तो आपके जहन में दिमाग में सबसे पहले आएगा इलॉन मस्क, राइट। तो आप ये लोग जिन आप लिस्ट बना लीजिए, आप इलॉन मस्क का नाम ले लीजिए, आप मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, आप स्टीव जॉब का नाम ले लीजिए, तो ये सारे लोग आप इसमें से लिस्ट बनाइए, हर इंडस्ट्री के आप ले लीजिए, उसके बाद में आप लिस्ट बनाइए। तो उसमें जब आप लिस्ट बनाए ना 5-5 लोग आप सिलेक्ट कीजिए, उसमें देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, राइट। तो जब ईशान ने ये काम करना शुरू किया, तो उसके पहले मैं एक और बात बताता हूँ कि ईशान आपको लगता है कि बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तो ईशान वाज कम्प्लीटली हाईली इंट्रोवर्ट गाय। तो मैं ईशान को बोलता था कि बार बार कि यार लोगों से बात किया करो, इंटरेक्शन किया करो, इंटरेक्शन करने से मन में क्या बोलते हैं आप, क्या सोचते हैं, आपकी वोकेबलरी जो है ना, जो आपकी वोकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, वो शार्प होती है। एंड ही वॉज वेरी शाइंग गाय। तो उसके बाद में जब इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी में एडमिशन हुआ, उसके बाद से जब इसने काम करना शुरू किया यूट्यूब के ऊपर, और शुरू में मेरे को लगता था कि ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है पढ़ाई के ऊपर, क्या बात है क्या नहीं है। बट एक बात समझ में आती है कि अगर कोई भी काम आप मन से कर रहे हो ना, तो उसमें सक्सेस तो मिलना ही मिलना है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप दूसरा कुछ कर रहे हो। और अगर आप देखें जो टाइम अभी चल रहा है, जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट द क्रिएटर इकोनॉमी। तो शुरू में मेरे को लगता था कि ईशान शायद ठीक नहीं कर रहा है, बट जो लगन देखी उसको देख करके लगा कि नहीं, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और आज ईशान वो है कि जिसके कारण से लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि आप ईशान के फादर हैं। आई रिमेंबर द लास्ट वीडियो विच यू शॉट, यू नो, आफ्टर दैट आई रिसीव्ड, यू नो, आई थिंक मोर देन 150 रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन। या एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी मैं यही सारी बातें करता हूँ कि भाई लाइफ में आपको आगे कैसे बढ़ा जाए और हाउ यू कैन, यू नो, शार्पन योर फ्यूचर एंड द करियर। तो पर्पज़ यही है कि आप लोग सीखें। एंड द बिगेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज नाउ डेज अवेलेबल, बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है। आप क्या सीखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो यूट्यूब के ऊपर अच्छा कंटेंट भी है, वो यूट्यूब के ऊपर आपको बर्बाद करने के लिए भी सारी चीज़ें हैं। आप क्या देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा आपसे बस कहना यही है कि वही इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर अच्छा कंटेंट भी है, ख़राब कंटेंट भी है। आप क्या देखते हैं, आपको क्या बनना है लाइफ में, आपको कहाँ अपनी एनर्जी आपको डालना चाहिए, वो आप डिसाइड कीजिए। और उसके पहले जबकि आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आप गलत करने की का थॉट भी मन में आता है, तो सोचिए अपने पेरेंट्स के बारे में, सोचिए आपके पास क्या चीज़ है, और सोचिए वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको डेथ बेड वाला दिया, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके पास में भी आकर के वो जो घोस्ट है वो आकर के बोले कि यू कुड हैव गिवन अस लाइफ। तो अब उसके बाद में तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में वो एफिशिएंसी नहीं है, वो एफर्ट्स नहीं है, आप कुछ करने लायक बचेंगे, है ना। तो ये टाइम वापस नहीं आएगा जो टाइम आपके पास में है, ये एनर्जी वापस नहीं आएगी जो आप अभी कर सकते हैं। यस ईशान। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो लोग सीख सकते हैं दैट विल टेक देम अहेड इन लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? कुछ जनरल हैबिट्स जो लोगों को सीखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली ईशान का जो ऑडियंस है ये सारे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे मैं बहुत सिंपल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। और शायद मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया है कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू। सबसे पहली हैबिट ये है कि आप पढ़ें। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट। पढ़ने से, when I say you must read, doesn't means that you read only your theory books, which are your, you know, subject books. World is more than that, right? तो आज की तारीख में, आज के समय में जो बाकी जो बुक्स हैं, जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो बुक्स होती हैं वो देखिए, और कुछ स्किल्स आप साइड बाय साइड, जिसको ईशान अपने उसमें साइड हसल बोलता है ना, हसलर्स बे और हसलर्स की जो वर्ल्ड है उसमें, तो वो आप साइड हसल करना शुरू कीजिए। क्या होता है कि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द साइंस। तो आपके साइंस में जब भी कोई आप नई चीज़ सीखते हैं ना, तो आपके ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल और न्यूरो पाथवे एक बनता है, एंड दैट्स हेल्प्स यू टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। तो वहाँ से आपकी हैबिट बनना शुरू होती है। सो व्हेन इट कम्स टू हैबिट, कोई भी जो होती है ना, हैबिट दो टाइप की होती हैं। एक तो होता है कि आपने कोई काम किया और आप भूल गए। अनदर थिंग इज़ इफ़ यू वुड लाइक टू मेक एनी हैबिट योर योर हैबिट, इफ यू वुड लाइक टू इनकलकेट इनटू योर डे टू डे लाइफ, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम उस चीज़ को करना है।
So the University of London says that now it is now not more than not around 21 times, it is more than that, it is 40 times. So if anything which you would like to do and you would like to become extraordinary into that particular thing, do that particular thing for 40 times. 40 बार आपको करना है consciously. 41 जो टाइम है उसके बाद में वो आपकी इनकलकेट इनबिल्ड हैबिट बन जाती है. तो सबसे पहली चीज़ रीडिंग आप जो होती है वो कीजिए. दूसरा नया स्किल जो है उसको डेवलप कीजिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डेली रूटीन है वो आपका रूटीन जो है वो आपकी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप कितने बजे सो के उठते हैं और आप कितने बजे सोने जाते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं. तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप 2 चीज़ें कीजिए. सबसे पहली बात, जब आप सुबह सो कर के उठते हैं तो सुबह की शुरुआत आपको अगर अच्छी करना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप रात को ठीक से जब सोते हैं तो उसको आपको सक्सेसफुल बनाना है. उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए देयर इज़ अ पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हुज नेम इज़ कॉल्ड मार्टिन सेलिगमन. मार्टिन सेलिगमन ने सेड इट वेरी राइट दैट जब आप रात को सोते हैं ना तो सोने के पहले दिन भर में जितनी भी चीज़ें आपके साथ में होती हैं 3 पॉजिटिव चीज़ों को आप याद कीजिए जो अच्छा आपके साथ में हुआ है. या आप किसी अच्छे पॉजिटिव इंसान से मिले हों, आपने किसी की अच्छी पॉडकास्ट सुनी हो, आपने किसी बहुत अपडेटेड वेल ड्रेस्ड इंसान से मिले हों, किसी बच्चे की मुस्कुराहट आपको अच्छी लगी हो. 3 चीज़ें जो पॉजिटिव आपके दिन भर में हुई हों उसको आप याद कीजिए. अगर आप इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ जर्नलिंग, अगर आप लिखने की अगर आपको हैबिट है डायरी बनाने की, तो आप उसमें नोट कर लीजिए. उसके बाद सोइए. एंड मेक दिस एंड टेक दिस विद यू दैट जब आप सोते हैं ना रात में तो उस समय जब आपका जो थॉट होता है आपके दिमाग में जिसके साथ आप सोते हैं वही सेम थॉट के साथ में आप सुबह सो करके उठते हैं. तो अगर आपको अपनी सुबह अच्छी बनानी है तो आपको अपनी रात अच्छी को ठीक तरीके से करना पड़ेगा. तो ये 3 ये काम आप कीजिए रात को. 3 अच्छे जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, मुश्किल होता है. ख़राब चीज़ें तो याद आ जाती हैं जो आपने बेकार से काम किए हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें याद करना मुश्किल होता है. लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी. तो उनको याद कीजिए, उसके बाद सोइए. जबकि आप सुबह जब उठेंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उठेंगे और आपकी लाइफ में उस सुबह से लेकर के शाम तक का एक रूटीन होना चाहिए. तो रॉबिन शर्मा काफ़ी बोलते हैं इसके बारे में, मॉर्निंग रूटीन के बारे में. आप सुबह उठिए, उनकी बुक भी है 5 AM क्लब, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप रीड कीजिए. हैबिट्स के बारे में उसमें बताया है. सुबह उठ करके मेडिटेशन करना है, सुबह उठ करके आप फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. व्हेन यू डू फिज़िकल एक्टिविटी इट विल हैव द न्यूरोकेमिकल release in your brain that is called BDNF, brain drive neurotropic factors. So that keeps you, there are so many signs which I don't want to go into it. So for more information read and go and watch my channel Dear Life. Yes. So you get to learn so many scientific things over there. Ji. Awesome. What is your thoughts on dating and modern love? Dating that people perceive as right now in 2022. According to what you have seen. Good. Nothing wrong into that. But whom you are dating, that's the important thing. Love is the kind of thing, so the perception is, love, people are perceiving that love with the girl or the girlfriend or the like that. Love is everywhere. है ना? तो प्यार जो होता है वो सभी जगह होता है. शायद कहीं ना कहीं हम उस प्यार को खाली वो एक ही जगह पर एक ही डायरेक्शन में देखते हैं. आप जब पैदा होते हैं ना, सबसे पहली जो प्यार जो आपको करने वाली होती है वो आपकी माँ होती है ना. तो वहाँ से उस प्यार की शुरुआत होती है. और शायद उसके भी पहले से होती है. उसके पहले से तब से होती है जब आपको आपकी माँ अपने वोम में कंसीव करती है. तो उस प्यार के साथ में आप बड़े होते हैं. तो प्यार जो है वो लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है. प्यार को आप अलग से नहीं देख सकते. तो यंग जनरेशन वाले जितने भी लोग होते हैं वो प्यार को केवल एक ही डायरेक्शन में देखते हैं कि वो लड़की के साथ में जा रहे हैं, डेटिंग पर जा रहे हैं. और वो जो एक लाइफ का जो एक फेज़ होता है ना, बड़ा रोज़ी खोजी वाला, बड़ा अट्रैक्शन वाला होता है. तो आपको देखना पड़ेगा कि वो प्यार है या कुछ और है. It's more of the physical attraction which normally you tend to fall in because of the secretion of the hormone, especially in this age. तो वो क्या है? तो ये है. डेटिंग में कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन किसके साथ आप डेटिंग पे जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. कैसे अपना एक राइट पार्टनर चूज़ करना चाहिए? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है. राइट पार्टनर चूज़ कैसे करना चाहिए? टू डेट. हाँ, टू डेट डिफ़िकल्ट है, वो करके ही पता चलता है. तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है. कहीं आप गलत हैबिट में तो नहीं फंस रहे हैं, है ना. तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप कभी कभी होता है ना, आप यू आर इनटू द ट्रैप और आपको बाद में पता चलता है कि अरे यार मैं क्या कर बैठा. तो इसके लिए जो बाकी लोगों के जो एग्जांपल्स हैं ना, जो लोग फेल होकर के बैठे हैं, ज़िंदगी जिनकी बर्बाद हो चुकी है इन सब चीज़ों के पीछे, करियर बर्बाद हो गए लोगों के पीछे,
तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उनको ध्यान में रख के जाइए. एंड यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द पीपल. राइट, कोई आपसे दोस्ती कर रहा है तो क्यों दोस्ती कर रहा है. देर आर मेनी पीपल दोज हु डू अ फ्रेंडशिप, यूज द पर्सन एंड जस्ट किक ऑफ दैट पर्सन, है ना, एंड देन बाकी फिर कुछ और. तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए. ये इस एज में समझना बड़ा मुश्किल होता है, मेरे को पता है, लेकिन जो समझता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है. तो ये एक डायलॉग है मूवी का, भाग मिल्खा भाग, है ना. भाग मिल्खा भाग में बोलते हैं उसको कि आसमान में उड़ने वाले ज़मीन के पेड़ पौधों से दिल नहीं लगाया करते, है ना. आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है. अगर आपको मैराथन रन करना है तो आपको कितना, 1 किलोमीटर की मैराथन करना है, 1 मीटर की मैराथन करना है ना, ये 10 किलोमीटर की मैराथन रन करना है, और आपको 21 किलोमीटर की करना है. लोग 50 किलोमीटर की भी करते हैं. तो आप किस मैराथन के लिए तैयार हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. आपका पीक, आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर आपका पीक है. बेसिकली आपको पता नहीं होता कि आपका पीक क्या है, आपको पोटेंशियल कितना है. डोंट लिमिट योर सेल्फ फॉर ऑल दीज हैबिट्स. बाकी सारी चीज़ें आपको फॉलो करती हैं. अगर आप लाइफ में ग्रो करते हो, अगर आप लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको. लड़कियां लाइन लगा के खड़ी होंगी आपके पीछे. आप सोच भी नहीं सकते कि वो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा 4 कदम और उससे भी ज़्यादा हाइट वाली लड़कियां आपको फॉलो करेंगी, है ना. तो लाइफ में कुछ बन जाइए पहले. और बनने से मतलब ये नहीं होता कि आपने 2-4-5 करोड़ रुपए कमा लिए, 50-100 करोड़ रुपए कमा लिए और आप सोच रहे हैं नहीं अब तो मैं बन गया, अब तो मेरे को आगे बढ़ना, अब तो मैं जो भी कुछ करूँगा कर सकता हूँ. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. लाइफ बहुत बड़ी चीज़ होती है. ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आते हैं. तो इतने छोटे में अपने आप को अपना मेजरमेंट मत कीजिए. ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर. उसको इतने ईजीली आप निगोशिएट करके आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. राइट. तो ये आपके लिए भी और आपके जो बाकी ऑडियंस में लोग बात सुन रहे हैं उन सभी के लिए ये मेरा दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. और सबके लिए मेरी ये एक सीख है. दिस इज़ द लर्निंग इफ़ यू टेक. आई एम श्योर नो वन कैन स्टॉप यू टू ग्रो इन टू द लाइफ एंड फुलफिल योर ड्रीम्स. अमेजिंग. एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, दैट इज़ हाउ कैन पीपल अवॉइड सोशल मीडिया एडिक्शन. बहुत ज़्यादा अभी आजकल शॉर्ट्स चल गए हैं, रील चल गए हैं, मेरे खुद के भी शॉर्ट आते हैं, रील आते हैं, बट बहुत सारे लोग इसको बस देखते ही जाते हैं. सुबह शाम स्क्रॉल कर रहे हैं. मैं भी स्क्रॉल करता हूँ, बट मैं स्क्रॉल करता हूँ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए क्या चल रहा है एग्जैक्टली. आप लोग स्क्रॉल करते हो, आप सीख रहे हो, बट देन आपके दिमाग में आपको लगता है कि टू प्रोग्रेस इज़ टू लर्न मोर, whereas to progress is to execute more, right? तो वो एक mindset shift होता है. तो मतलब basically how can people avoid this addiction that people have? तो when it comes to addiction आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो लोग ये जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जो बनाते हैं इस टाइप के प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हुआ, द रील्स ऑन द इंस्टाग्राम और मे बी शॉर्ट्स ऑन द यूट्यूब, द पर्पज ऑफ दिस पीपल इज टू हैक यू. Right, so they basically try to hack your brain, right? So that is called the hook what they create, कभी आपको आधे कपड़े पहने वो लड़कियां दिखा देते हैं, कभी आपको कुछ ऐसा जो प्लेजर बेसिकली नहीं होता वो आपको दिखाते हैं. एंड यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ, यू डेवलप दिस बैड हैबिट. सो आपको टाइम ब्लॉकिंग करना पड़ेगी कि दिस इज़ द टाइम वेयर आई विल वॉच दिस. कभी कभी समटाइम यू माइट हैव फेल्ट दैट यू आर वॉचिंग समथिंग एंड उसमें 2 घंटे निकल गए एंड यू वांटेड टू हैव अनदर शेड्यूल इज वेटिंग फॉर यू टू कंप्लीट. तो वो चीज़ें होती हैं. तो टाइम ब्लॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑल. एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि शेड्यूलिंग कीजिए चीज़ों को. आप अपना डेली का आप रूटीन बनाइए कि अगर मैं मोबाइल में रील देखना है आपको, अगर आपको टीवी देखना है, अगर आपको कोई मूवी देखना है, तो दिस शुड बी द डे एंड द टाइम वेयर आई विल वॉच दिस. अगर आपको डेली देखना है तो नथिंग रॉन्ग इन वॉचिंग रील्स, बट उसको बोलते हैं ना हिंदी में कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो बहुत ख़राब होती है. अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा संस्कृत में भी बोला जाता है. तो आप उसके लिए टाइम ब्लॉकिंग कीजिए. और यदि आधा घंटा है तो आधा घंटा ही दीजिए. आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे किसी चीज़ का तो वो आप ड्राइव होते रहेंगे. आप यू आर नॉट ऑन द ड्राइवर सीट, राइट. तो इसको बोलते हैं ना कि आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं या आपको कोई और ड्राइव कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप कार में बैठे हैं तो ड्राइवर ने अगर राइट टर्न लिया तो आप सब भी राइट टर्न की तरफ मोड़ टर्न हो जाते हैं. अगर लेफ्ट टर्न लिया तो आप लेफ्ट टर्न की तरफ टर्न हो जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि यू आर नॉट ऑन द ड्राइवर सीट. जब आप ड्राइवर सीट पे होते हैं तो आपको पता होता है क्या होता है, बाकी लोग फिर टर्न होते हैं. सो ड्राइव योर लाइफ by yourself. Do not be driven by other people like other social media platforms and like this. तो चीज़ें जो आपको हुक करती हैं अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए उसको, टाइम ब्लॉक कीजिए, शेड्यूलिंग कीजिए
and be a driver of your own life, time, and your efforts. Thank you so much for joining me here. Thank you so much for sharing your wisdom with the people who are watching this video right now. अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ what is the one thing that you took away from this whole conversation that we had and आप क्या implement करोगे अपनी life में. Thank you so much, Papa ji. So what is the most important thing here? Not only one thing. Guys, if you are watching this, I would request each one of you, write minimum 5 things what you are learning from this podcast. And more than writing there, what are the few things out of these 5, top 3, which you will be going to implement for your life, right? If this podcast may bring, the 1% change in all of you, that is the success of this podcast. So Ishan is putting his hard efforts, especially for making the videos and doing a lot of research and many more things. And I know the kind of hard work he is doing, and like other creators are also doing, the kind of efforts he is putting. Find out your niche, find out your area where you really wanted to become something. सबसे पहली चीज़ होती है उसको find out करना, उसके बाद में start working on that. Find out top 3 people, those who are doing exponentially good work into that particular thing, और उसके बाद में स्टार्ट बिल्डिंग द कनेक्शन विद देम. आजकल के टाइम में कनेक्शन बनाना बहुत आसान है. आप ट्विटर पे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, एंड गेट इन टच विद दीज पीपल, फॉलो देम ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स वेयर एवर दे आर, एंड सी हाउ दे आर डूइंग, व्हाट दे आर लर्निंग, व्हाई दे आर सक्सेसफुल द वे दे आर सक्सेसफुल, एंड ट्राई टू इनकलकेट देयर हैबिट्स इनटू यू, right? And develop and grow. No one can stop you. Amazing. Thank you so much. All the best. Thank you so much, guys. Bye-bye.